Okay. Now the question is very simple. Create a user defined exception class that will accept a number from the user and will throw appropriate exception. And there will be three exceptions: zero exception, negative exception, positive exception. So, and will accept integer from the user. The program is terminated when the user enters zero. यानी ये exception throw करने के बाद program should get terminated. I think so. Yes or no? बराबर है क्या नहीं? Okay, let it be. We'll not go for this one. So we'll go for first for this part. Okay. So let us see in the last part. So I'm just copying the content. Now we'll move for the exception assignment, and into source I will be saying new class. Right click. So right click, new, and the class. Okay. So this class will be uh, positive, negative, and zero, exception demo. Okay, ठीक है ना ये ऐसा नाम. Okay, and this will be the main function. Okay, now I want to one second, someone has joined. Okay, now the problem statement is just like this one. So what is the question in front of us? We need to create a user defined exception that will handle these three conditions. First condition is what? If the user enters 0, it should throw an exception called as a zero exception. If a user enters any positive number, okay, or any negative number, it should throw a negative exception. And for any positive number, it should show a positive number. And I think so accept integer from the user, the program is terminated when the user enters 0. So after throwing this exception, the program should get terminated. So this is the what the logic is behind this. So are you getting the questions? Yes or no? हम यूज़र के पास से नंबर लेंगे, अगर वो जीरो होगा तो जीरो एक्सेप्शन, नेगेटिव होगा नंबर होगा तो नेगेटिव एक्सेप्शन, एंड पॉजिटिव नंबर होगा तो दैट विल बी गोइंग फॉर पॉजिटिव एक्सेप्शन. द थ्री एक्सेप्शंस विल बी देयर. Is this clear to everybody? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and the name I have given, that is मेरे को ये सब implement करना है, तो I have given name called as positive negative zero exception demo. ऐसा मैंने नाम दिया और इसके अंदर सिर्फ मेन फंक्शन है, बाकी कुछ नहीं. ओके, अब ये क्या है हम बाद में देखेंगे, पहला हमें यूजर डिफाइन एक्सेप्शन लिखना है. सो दिस इज जीरो एक्सेप्शन. Okay, so what is the rule? We need to create a class that is user defined exception that will be extends what? Help me. Which class it will be extending now? Yes. Exception. Okay, it will be using exception class. Okay, and what is the second rule then? What is the second rule? We need to create a Create constructor. constructor. Yes, we need to create a constructor, and that will be having some string value into it. So string, I will say message1 msg, I will say that is 0, msg 0. ये हमारा message है. So I will call it as 0. Okay, ये हमारा message हमें देना है. And what is the third? Now what I should write into this function? Super keyword. So I need to call a super class constructor using super keyword, और जो message मुझे यहाँ से मिला है वो message को मुझे यहाँ से भेज देना है. That's it. Okay, is this clear? Yes, sir. Okay, one second. Zero exception. Now this is showing some error. string string का क्या problem है? string. Let it be. I'm saving it. Let us see at the end what is it, the exact error. Super. जीरो है क्या इसके अंदर? मैंने कोई दिया है क्या पहले वाले क्लास में? ये नाम ऑलरेडी हमने यूज़ किया तो नहीं यूज़ किया. ओके, ज़ीरो एक्सेप्शन में कोई दिक्कत नहीं.
So class 0 exception and extends exception, 0 exception and the string message. This is the message. Okay, abhi iska, this is one. Now second, I will be creating the second one, that is negative exception. Again same format, class negative exception extends exception class, and into this there will be one constructor of the same name, and that will be having some message in the format of string. So I will call it as message negative. Okay, negative, and that will be calling one function, that is super constructor. So super, and I will be passing this negative message. मैं नेगेटिव इसको msg बोलता हूँ, msg. This will be very clear. Okay, so I'm 0 message msg. Okay, so this will be very precise हो जाएगा. So I'm passing this message, negative message will be passed. And third one, the third class, that is your positive exception. Okay, so this is again a class. So यह इसके नाम के आगे मैं class लिख देता हूँ. Again it will be extends exception, and into this there will be one constructor, and will be having a string, and the string will be positive msg, positive message. That's it. Okay, and that will be passing to the super, and this message will be passed. Okay, one second. Okay, so are you clear with this one? ये तीन हमने तीन क्लासेस लेके, अभी इसमें कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट्स, एनीबॉडी इज हैविंग? यस, कुछ नो नहीं. डाउट सर. ये जीरो No, sir. कंस्ट्रक्टर लिखा, ये सब तरफ देखो डेफिनेशन विल बी सेम. ये कंस्ट्रक्टर, ये क्लास, ये कंस्ट्रक्टर, ये क्लास, ये कंस्ट्रक्टर, ये क्लास. बाकी रिमेनिंग पार्ट इज एज इट इज. फॉर सुपर कीवर्ड ये मैसेज जो आया हमने सिर्फ उसके अंदर पैरामीटर में भेज दिया. दैट्स इट. ये तीन हमने कर दिए. अभी हमें हमारा लॉजिक लगा कि ये चीज़ों को हैंडल करना है. एज सुन एज द पर्सन एंटर सम नंबर दैट वी नीड टू बी ट्रीटेड, कि उसके हिसाब से उसको एक्सेप्शन को अभी थ्रो करना है. सो फॉर इंसर्टिंग एक्सेप्टिंग अ नंबर, I will be importing import java dot io dot star. io package मतलब क्या है, जिसके अंदर मुझे buffer reader यूज करना है. So that's why I am using io package. Okay, I will be writing this into my class, जो मेरा executable फाइल है, जिसके अंदर मेरा मेन फंक्शन है. इसके अंदर में ये प्रोग्राम को रन करूंगा. Okay, now buffered reader, buffered, buffered reader is the name of the class which is present into that io package. So buffered reader br is equal to new, and the same class into bracket new input stream reader into bracket. अब ये पूरा क्या है सिंटेक्स, ये जब हमारा क्लास चालू हो जाएगा या फिर जब हम फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम के लिए जाएंगे, तब आपको ये सब क्या चीज़ें हैं वो मोर डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, तो उसकी कोई टेंशन मत लो. बट दिस इज द सिंटेक्स ऑफ बफर रीडर, यू जस्ट कीप इन माइंड. ओके, नाउ आई विल बी गिविंग सम मैसेज, दैट इज system.out.println, and I will be asking that person to enter any number. मैंने उसको नंबर बोल दिया, he can put any number, he can give positive or negative, or he can give 0 also. So choice is उसको क्या देना है. So he will be entering a number, and after entering a number I will be reading that numbers. So I will be reading the number in the format of integer. So int, I will say that number no is equal to br dot read line. ये नाम के फंक्शन से हम उसको रीड करेंगे. बट दिक्कत एक है कि हम जब भी रीड करेंगे इट इज़ ऑलवेज इन स्ट्रिंग, एंड हियर इट इज़ इंटीजर. वी नीड टू गो फॉर टाइप कास्टिंग. सो इंटीजर डॉट पार्स इंट से हम उसको कन्वर्ट करेंगे. ये पूरे जो स्ट्रिंग को है उसको हम कन्वर्ट करेंगे नंबर में. आर यू क्लियर? Yes, sir. ओके. integer dot parse it, and this is the bracket of this intno number. Now again मैं जैसे बोल रहा कि जैसे हम इसको यूज करेंगे ये हमें रेड लाइन हर बार दिखाएंगा.
तो हमें यहाँ पर थ्रो क्लॉज, अगर यहाँ पर सिस्टमेटिक यू जस्ट क्लिक ऑन दिस ऐड थ्रो डिक्लेरेशन, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी शोइंग दिस थ्रो एक्सेप्शन, दैट इज नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन और आईओ एक्सेप्शन, ऐसे दो चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगे. दिस मिनिमम टू एक्सेप्शंस इज बीन हैंडल्ड बाय दिस वन. अगर आपको ये नहीं चाहिए तो यू कैन गो फॉर ट्राई कैच ऑल्सो लाइक दिस वन. ओके, आप ट्राई कैच भी लिख सकते हो उसके लिए. तो सिंपल है, these are all user defined exception, what you call as that catch exception, so we will be using throws keyword. Okay, आपको ये नहीं चाहिए, डोंट गो फॉर दिस वन, तभी भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा. बट बेसिक सिंटैक्स ऑफ बफर रीडर विल बी हैंडलिंग दिस टू एक्सेप्शन, दिस इज और कार्ड, इस एक्सेप्शन को हम बोलते हैं catch exception, because at the time of reading this is been handled by your java इंटरप्रीटर. जो हम टाइप कर रहे हैं तो उसका एडिटर हमें ये एरर्स आइडेंटिफाई करके बता रहा है. Now are you clear with this number that we will be converting, transferring the number into the variable called as no? यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now exactly your logic starts from here. If this number is greater than 0, not equal to 0, then you have to throw ये वाला, एंड थ्रो के बाजू में क्या चाहिए? इंस्टेंस चाहिए. सो थ्रो विच वन? इफ इट इज ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? इट इज पॉजिटिव एक्सेप्शन. सो इट इज न्यू पॉजिटिव एक्सेप्शन एंड वी विल बी गिविंग दैट नंबर इज पॉजिटिव. आर यू क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ओके, ये फिर भी बताएंगे कि ये हमारी कुछ प्रॉब्लम्स है. क्या प्रॉब्लम है? कि जब भी हम ये लिखना चालू करेंगे ये सब कुछ हमें ट्राई कैच के अंदर लिखना मैंडेटरी बन जाता है. ओके, ध्यान में रखना, इट शुड बी रिटर्न विद इन योर ट्राई कैच ब्लॉक. तभी ये, अभी ये क्या है, अभी फिलहाल हम इसको सिर्फ सिंटेक्स में यहाँ पर इतना ही लिख देंगे ट्राई कैच, तो ये हमारा एरर इमीडिएटली जाएगा. ध्यान में रखना, एट ईच लाइन यू शुड मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग दोज एक्सेप्शंस. ओके, नाउ हियर देयर इज एन एरर बिकॉज ये आपने इसको थ्रो कर दिया, इसका मतलब इसको आपको हैंडल करना पड़ेगा. ओके, सो आई विल से दैट पॉजिटिव एक्सेप्शन पी. ओके, एंड उसका लॉजिक मैंने अभी इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, जस्ट कीप इट एम्प्टी. ओके, नाउ सेकंड कंडीशन, if the number is less than 0 then throw new, again instance, which one? Less than 0 मतलब negative exception. So name same class negative exception and we will be passing this parameter that is into double quote. क्यों हम भेज रहे हैं? बिकॉज इसके कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन ही वैसा है. पॉजिटिव का कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन है कि वो स्ट्रिंग लेके आने वाला है. नेगेटिव कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन है इट विल बी ब्रिंगिंग सम स्ट्रिंग. सो हमें इसके अंदर नंबर टेक्स्ट ही देना पड़ेगा. सो आई विल से दिस एज नंबर इज नेगेटिव. ओके, आर यू क्लियर विद दिस वन? अगेन इट इज शोइंग एन एरर. मतलब क्या? कि हमें इसको हैंडल करने के लिए एक कैच चाहिए. क्या चाहिए? कैच. ओके, सो ऑटोमेटिकली इट विल बी राइटिंग अ कैच स्टेटमेंट फॉर अस. Are you clear this one? Yes? ये एरर गया इसका. If third one, if the number is exactly equal to 0, यानी exactly equal to 0, then throw new, that is 0 exception, first one. इस exception को वो throw करेगा and I will be passing it as number is 0. That's it. Again it will show an error because I need to write one more catch. जितने क्लासेस का ऑब्जेक्ट में बनागा उतना मुझे यहाँ पर यूज ही करना पड़ेगा. So it is 0 exception. That's it. So are you clear with this one? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब मैं इसको, देयर इज नो एरर सो आई कैन रन इट नाउ. बिकॉज आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग इनटू कैच. ध्यान में रखना, मैंने अभी तक कैच में कुछ नहीं लिखा. क्या लग रहा है आपको? ये आउटपुट दिखाई देगा? ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई देगा? इफ आई एम नॉट यूजिंग एनीथिंग ओवर हियर इनटू दिस पैरेंथेसिस, यानी क्या? इसके कैच में मैंने कुछ नहीं लिखा अभी तक, तो क्या ये कुछ आउटपुट नहीं दिखाएगा? क्या लगता है आपको? लेट अस सी.
Okay. Now first time I'm entering 0 now. See, the program is still working. I'm putting something like this one. It has stopped execution. I am not getting any output. मुझे कुछ आउटपुट ही दिखाई नहीं दे रहा. My system is getting hang. क्यों हैंग हो रही है? Because see this. Because I have not shown anything into this catch. I need to handle this exception. Okay. तो हम इसको क्या कर सकते हैं? एक तो आप ऐसे कर सकते हैं p dot print stack track. ये नाम के फंक्शन से आप यूज. p means what? This is the object of your class. Okay. Here also this object is e. हम इसको 0 को जड़ेंगे z देंगे. हम इसको हम नेगेटिव को n नाम देंगे. ओके. सो n डॉट प्रिंट स्टैक टैग. ओके. स्टैक टैग डालने से हमारा वो दिखाई देगा. देन z डॉट प्रिंट स्टैक ट्रैक. दैट्स इट. एंड नाउ व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, इसको सेव कर देता हूँ. व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, सो you will ask any number. So first time I'm again entering 0 and I'm pressing again. Now see, it will be showing that 0 exception, the name of the exception, number is 0, and at positive negative this is present. This exception is been thrown by the file called as positive negative 0 exception. यानी ये वाली हमारी फाइल ने ये एक्सेप्शन को जनरेट किया है, थ्रो किया है. द नेम ऑफ एक्सेप्शन इज 0 एक्सेप्शन. और उसका डेफिनेशन में यानी क्या एरर है? दैट इज द टेक्स्ट विच यू हैव प्रोवाइडेड. आर यू गेटिंग व्हाट इज दिस? यस और नो? यस सर. ओके. अगर आपको ये नहीं पसंद है, ऐसा नहीं चाहिए आपको, यानी ये जो ऐसा दिखाई देता है ऐसा नहीं चाहिए, बहुत सिस्टमेटिक, जैसे यहाँ पर आउटपुट दिखाई दे रहा है प्लेन टेक्स्ट से, आपको ये प्लेन टेक्स्ट में चाहिए, तो यू कैन यूज द फंक्शन कॉल्ड एज system dot out dot println and you can use that is p dot get message. मैंने पिछली बार भी बताया था कि you can use this one. okay, so I just copy this one और ये सिंटेक्स में हर जगह पर मैं डाल देता हूँ. ओके. सो नेगेटिव भी डाल देंगे, पॉजिटिव को भी डाल देंगे. बस यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करेंगे. इस यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है? नेगेटिव का. यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है? 0 का, z. ओके, दैट्स इट. एंड आई जस्ट सेव इट एंड आई जस्ट रन दिस प्रोग्राम. Now same output, I'm again entering 0. I will be getting number is 0. This is an exception. Okay. यहाँ पर हम लिख सकते हैं exception. Okay, number is 0. Exception, number is negative. Exception, number is, that's it. Okay. So are you clear with this one? Yes, sir. Okay. अब यही को इसको नेगेटिव नंबर को चेक करेंगे हम. आई एम एंटरिंग -122 and you will saying that number is negative because I have entered minus sign to that. Same program, I am entering some number that is 125, that is positive number, so number is positive. So I think this is clear to everybody. Yes? Yes or no? Yes sir. Okay. Shall we move further for the next assignment then? Yes sir. Okay. Now ये जो लास्ट वाला लॉजिक है ये आप लगा दो. ये यानी as soon as he enters 0 the program should get terminate. क्या how कैसे कर सकते हैं इसको terminate now? If it is 0 then how to stop this one? Very simple, एक bracket add करना है and you just say exit and that's it. Exit नहीं कर सकते हम इसको. You can go for system.exit. कौन सा फंक्शन है जिससे हम प्रोग्राम में से बाहर आ सकते? Can anyone tell me? System.exit. Okay, and you have to pass a number called as 0. तब जाके ये प्रोग्राम को exit करेगा सिस्टम. 1 second, it is break. Can anyone tell me how to exit the program then? किसको पता है? How to exit the program? Yes?
क्या ये सही है कि गलत है? ये क्यों रन नहीं हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा है, बिकॉज अगर मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया होता वाइल, और यहाँ पर मैंने बोल दिया ट्रू, ओके, if I say while true and when I catch this one, so this is what is okay, and अगर ऐसा बोल दिया तब ये प्रोग्राम सिस्टम लेट इट बी सिस्टम, या फिर हम उसको ब्रेक बोल सकते हैं, ब्रेक, दैट्स इट, ओके। नहीं हो रहा, लेट इट विल सी इन नेक्स्ट असाइनमेंट्स, ये आगे वाले एग्जांपल में हम देखेंगे, तब तक के लिए लेट इट बी। लेक्चर्स में हमारे पास बहुत ऑप्शंस है, तो फिलहाल हम यहाँ पर रखें। आई विल नॉट वेस्ट मोर टाइम, विल मूव फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज दिस विल बी हैंडल्ड, नो इशू अबाउट दैट। सेकंड वन दैट इज राइट अ प्रोग्राम, तब ये मैं फिलहाल एक प्रोग्राम लेता हूँ। this program will be here, you will be accepting some character. Now in this example you have accepted numbers 0 to negative positive. Now this program will be focusing on accepting the characters, character, single character, a b c d, any character, uppercase, lowercase, you can accept those character, and based on that you will be generating some exception. That is, if the character is a, e or I or o or u, you will be throwing an exception called as a vowel exception, okay. And if the entered character is digit, that is whether it is 1 2 3 4, then you will be displaying the exception called as a digit exception, okay. Are you clear with this? If it is a, e, I, o, u, then it will be displaying that it is an vowel. If it is number, then it will be showing that it is 0 से लेकर 9 तक आपने कोई भी डाला, it will say that it is digit exception. And third one, ए बी सी डी से छोड़ के, यानी ए बी ए से लेकर जेड तक वॉवल छोड़ के जो भी कैरेक्टर आप डालेंगे उसकी आस्क्यू वैल्यू वो दिखाएगा, उसकी आस्की वैल्यू वो दिखाएगा। और कब तक करेंगे हम ये प्रोग्राम? जब तक ये बंदा स्टार नहीं डाल देता। एज सुन एज ही एंटर स्टार वी विल बी एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। आर यू क्लियर विद दिस? आया सबको समझ में? हमें करना क्या है? यस यस, एवरीवन इज गेटिंग? क्या करना है हमें इस प्रोग्राम में? हमें यूजर के पास से कैरेक्टर लेना है, एक सिंगल कैरेक्टर, कोई भी हो, अगर वो ए हो या ई और आई और ओ यू, इसमें से कोई भी होगा तो हमें वॉवल एक्सेप्शन को थ्रो करना है। अगर उस बंदे ने 0 1 2 3 4 डाल दिया तो हमें डिजिट एक्सेप्शन को थ्रो करना है। अगर वो बंदे ने कोई भी अलग कैरेक्टर डाल दिया, नंबर छोड़ के और ए ई आई ओ यू छोड़ के, उसकी आस्की वैल्यू हमें बतानी है। आर यू क्लियर? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And if the person enters a symbol like star, I need to terminate the program. तब जाके मुझे प्रोग्राम को टर्मिनेट करके बाहर आना है। Okay. So shall we go for writing the code? Yes. Yes, sir. Okay. So I am creating. Yes, sir. I am creating a new file into this one. Source. Right click. New. एंड द नेम ऑफ अ क्लास, ओके। अब मैं इसको नाम देता हूँ वॉवल, इसके अंदर हम वो देखने वाले वॉवल, डिजिट, ओके, और कंसोनेंट, यानी वॉवल जो होता है उसको छोड़ के, मुझे स्वर अनिव्यंजनीय, उसको बोलते हैं कंसोनेंट्स, ओके। सो वॉवल, डिजिट एंड कंसोनेंट्स डेमो असाइनमेंट, ऐसा हमने इसको नाम दिया। आर यू क्लियर? And I am saying I want this, there should be a main function into this one, and I am saying finish. Is it clear to everybody? Yes or no? Now? Yes? Yes, sir. Okay. Now I want to write, now I will be writing the code over here. Okay. अब मैं पहले इसके अंदर का मेरा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर देता हूँ, एंड आई एम जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट ओवर हियर, ओके। तो दिस इज माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हमें ये करना है। नाउ फर्स्ट आई विल बी राइटिंग द वॉवल एक्सेप्शन। सो क्लास सिंपल वही करना है, टेंशन लेना नहीं, इस एक्सटेंड्स एंड एक्सेप्शन। आर यू गेटिंग एवरीथिंग? सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? फिर से हाँ यस, वॉवल को हमने कॉपी कर दिया, वही कंस्ट्रक्टर हम ले, स्टेप नंबर 1 एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट किया, देन कंस्ट्रक्टर लिख दिया, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सुपर को कॉल करेंगे। सुपर इज द नेम ऑफ द फंक्शन, ओके। और यहाँ पर हम कुछ स्ट्रिंग्स लाने वाले, स्ट्रिंग, एंड दिस इज MSG, ओके। हम मैसेज ही लिखेंगे, एंड आई एम पासिंग दिस मैसेज टू द सुपर क्लास MSG,
Okay, this is the first one, that is vowel exception. Then on the same parameter I will be creating a digital class, that is class, और ये नाम है that is digit exception. Okay, and again it will be extends exception parent class को, और इसके लॉजिक में हम लिखेंगे एक कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, एंड दैट विल बी हैंडलिंग सम टेक्स्ट, दैट इज नथिंग बट योर msg message 1, और हमें भेजना है ये ऊपर वाले क्लास को यूजिंग अ सुपर कीवर्ड, एंड दिस मैसेज विल बी पास टू द सुपर वर्ड, दैट इज msg1. यहाँ तक सबको समझ में आया? दिस इज फर्स्ट एक्सेप्शन क्लास एंड दिस इज सेकेंड एक्सेप्शन, द वॉवल क्लास एंड एक्सेप्शन क्लास. ओके, थर्ड के लिए हमें एक्सेप्शन क्लास लिखना नहीं है, ध्यान में रखना. थर्ड के लिए किसने बताया हमें कि हमें ये दोनों का नाम दिया, पर तीसरे का नाम दिया क्या? नहीं. अगर ये कंसोनेंट रहेगा तो आपको उसकी आस्की वैल्यू बतानी है. ओके, so there will be only two exception class, one is vowel exception and second one is digit exception. Is it clear to everybody? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I want to accept some character from the user. तो कैरेक्टर को यूजर के पास से लेने के लिए हम अब बफर रीडर को ही यूज करेंगे. ओके, सो आई एम import java.io.star, ये पैकेज के अंदर हमारे बफर रीडर है. ओके, एंड दिस वन आई विल बी यूजिंग ओवर हियर. सो बफर्ड रीडर br is equal to new buffered reader into bracket new input stream reader into bracket system.in. okay, and then this is the, now as soon as this there will be an error. आगे तक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, बट व्हेन यू गो फॉर writing what you call is using it will be showing us an error. Now what I want to do is that I want to accept it into a character, so I'll say character value. ऐसा मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ, इसके अंदर ये वैल्यू को हमें स्टोर करके रखना है. Now I will be reading this using कंटिन्यूसली रीड करना है जब तक हम यूजर के पास से क्या करते हैं कि जब तक ये वाला बंदा जब तक स्टार नहीं डालेगा तब तक हम ये रन करते रहेंगे. यानी क्या? वी विल बी राइटिंग अ एंडलेस लूप. सो व्हाइल कंडीशन विद ट्रू. ओके, एंड वी विल बी राइटिंग अ कोड इनटू दिस वन. ये व्हाइल लूप में पूरा कोड हम लिखेंगे, यानी जब तक ये स्टार नहीं डालता तब तक ये प्रोग्राम ऐसा ही रहेगा. ओके, नाउ आई एम starting my code over here, system.out.println, and I am writing a single line. अब ये सिंगल लाइन से हमारा चालू होगा यहाँ से. दिस इज जस्ट फॉर लुक. ओके, अभी हम यूजर को पहले बोलेंगे कि प्लीज एंटर. सो आई विल से एंटर कैरेक्टर. मैंने बोल दिया उसको, he has entered a character. I will be accepting the character using br.read line. ओके, अभी रीड लाइन से पूरी लाइन आती है, पर हमें एक ही कैरेक्टर लेना है, सो आई विल बी यूजिंग रीड फंक्शन ओनली. आर यू गेटिंग? यस और नो? सो रीड लाइन विल बी, ओके, रीड लाइन विल बी, देखो अगेन आई एम शोइंग दैट br.read. नाउ सी दिस आर द लिस्ट ऑफ फंक्शंस. सो रीड इज इंटीजर, read character integer, so here you can use this one character. So if you want you can use this. Read line is for the string data type. Now this is integer. Now see, this is an integer. Read function is returning an integer value, that is nothing but the ASCII value. तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कैरेक्टर में. देखो यहाँ पर स्ट्रिंग रीड लाइन जो है वो स्ट्रिंग में है, तो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर डॉट पार्सेंट. नाउ रीड फंक्शन इज इन इंटीजर फॉर्मेट, तो उसको हमें कन्वर्ट करना है कैरेक्टर में. तो हाउ टू डू दिस? इट इज वेरी सिंपल. यू हैव टू यूज द टाइप कास्टिंग. नाउ देयर इज नो कैरेक्टर डॉट पार्स कैरेक्टर, ऐसा नहीं यूज कर सकते हम. यहाँ पर अलग तरीके से हमें उसको सेव करना पड़ेगा इनटू द वेरिएबल कॉल्ड एज अ वैल्यू. इसके अंदर हमें उसको सेव करना है. व्हाट आई हैव टू डू इज दैट उसको टाइप कास्ट करना है. सो इट इज जस्ट से कैर. ओके, नाउ दिस इज शोइंग एन एरर बिकॉज आई नीड टू यूज दिस थ्रोज कीवर्ड. सो अगेन, सो थ्रोज कीवर्ड से हमने, बिकॉज दिस इज br and br is a class and this is present into io package, so I am handling io package. This is called as a checked exception. That's why I can use through keyword. Are you clear? Yes or no? Yes. Okay. सबको समझ में आया यहाँ तक? अभी ये कैरेक्टर हमने लिया है, यूजर एक कोई भी कैरेक्टर डालेगा उसको हम
ये वेरिएबल में लेंगे. नाउ यू कैन डू एनी ऑपरेशन and you can do it and you can throw that exception. Now this is a character, that is value is now been treated as character. Now I need to know what is there in the character class जिससे हम use कर सकते हैं. I just go for command prompt, cmd में जाएंगे हम, 1 second, and I will use some functions which of character classes. Now what is char is a data type. ओके और उसको हम अभी यू कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर क्लास में. प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम रैपर क्लास में कन्वर्ट करेंगे. एंड लेट अस सी हाउ वी कैन यूज दिस रैपर क्लास. रेडीमेड कोई फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं क्या कैरेक्टर क्लास के. ओके सो आई एम जस्ट गोइंग ऑन कमांड प्रॉम्प्ट cmd सी दिस, और हम यहाँ पर एक डालेंगे दैट इज जावा p, दिस इज जावा डॉट lang package, that is language package के अंदर there is a character class. This is wrapper class and I'm just pressing enter. So is there any function to check digit, is there any function to check number, is there any function to check whether there is a vowel or not. ऐसा कुछ readymade function है क्या नहीं. But as far as my knowledge is concerned कि you can check, you can convert into, but is जो वाला है check करने के लिए, so you can check is digit. Okay, so whether it is a digit, whether it is a letter. Okay, so is वाला जो होता है they return करेंगे true or false value because this is a return type is boolean. Okay, so आपने डाला हुआ कैरेक्टर लोअर केस में है क्या, अपर केस में है क्या, डिजिट है क्या, okay, letter है क्या, anything you can check it and you can get it. Okay, so what I will do is that I will convert into character class. So character ch is equal to new character. Okay, and I will be passing this value, इसको मैंने अभी इसके अंदर डाल दूंगा. यानी क्या हो जाएगा, I will be converting this char data type that is value into a wrapper class called as a character. और अभी मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ. This ch I can use for checking anything. Are you getting yes or no? Yes or no? Yes everybody? Yes, sir. Yes, sir. Now I will use some logic. अभी मैं पहले चेक करना चाहता हूँ कि क्या वो डिजिट है क्या, फर्स्ट वन, या फिर देखो ये वाला देखेंगे. हम पहले डिजिट देखेंगे, डिजिट. ओके, सो इफ ch डॉट इज डिजिट, देखो हमारे पास सब आ जाएंगे फंक्शन. इफ इज डिजिट मतलब क्या, इफ इट इज एन डिजिट, हु कौन कौन वैल्यू, कौन वैल्यू, ये वाला, ये कैरेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर. इफ इट इज एन वैल्यू, ये वैल्यू अगर ये डिजिट होगा तो करना क्या है, यू हैव टू थ्रो वन एक्सेप्शन. द नेम ऑफ द एक्सेप्शन इज digit exception. Throw new digit exception, that is the message you want to pass. और हम यहाँ पर बोलेंगे exception digit entered. Are you getting? ये एरर क्यों थ्रो कर रहा है, क्योंकि ये सब कुछ काम हमें ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ेगा. Are you getting? Okay, so I am this one and this is catch. और उस कैच को हैंडल करने के लिए यानी ये वाला हमें यहाँ पर हैंडल करना ही पड़ेगा. सो डिजिट DE, so there will be no error. Okay, so I have checked it whether it is digit. If it is digit, automatically it will throw an digit exception, that is exception been handled. Okay, and I can handle it by using system.out.println, that is DE dot get message. That's it. So are you clear with this digit? Yes. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, if otherwise, else if, दोनों के बीच में फंक्शन स्पेस देना. else if, ये सेकंड कंडीशन है. वैल्यू यानी ये वाला, सेकंड कंडीशन के लिए हम जा रहे हैं ये वाला वॉवल्स को चेक करेंगे, इज एग्जैक्टली इक्वल टू सिंगल कोट A और वैल्यू
is exactly equal to single quote e, or value is exactly equal to single quote, sorry, it should be single quote because it is a character, AEI, or value is exactly equal to single quote O, or value is exactly equal to single quote U. तब करना क्या हमें, you have to throw which one exception, new, and that is vowel exception, new vowel exception, और इसके अंदर हमें मैसेज भेजना है कि that is exception vowel found, या फिर vowel entered. आर यू गेटिंग? और ये हमें फिर से यहाँ पर एक कैच लिखना पड़ेगा, और ये कैच जो है दैट विल बी हैंडलिंग द कोड ऑफ दिस वॉवल एक्सेप्शन, ये कंपलसरी है तो हमें इसको लिखना पड़ेगा. आई विल कॉल इट एज अ वी एंड दिस system डॉट आउट डॉट println ve डॉट गेट मैसेज से हम उस मैसेज को डिस्प्ले करेंगे. आर यू गेटिंग एनी एरर इन टू दिस वन? Yes or no? The first if statement, उसको अगर true होगा तो it will be throwing an exception. Second if statement, if its condition goes true, यानी उसको मिल गया तो it will be throwing an exception. And third condition, अगर वो दोनों में से कुछ भी नहीं तो करना क्या है, हमें उसकी ASCII वैल्यू डिफाइन करनी है. So I will go for else. Okay, and I will say system.out.println, हम बोलेंगे कंसोनेंट फाउंड या फिर कंसोनेंट, और हम इसके आगे उसकी ASCII वैल्यू डिस्प्ले करेंगे. कैन एनीवन टेल मी हाउ टू डिस्प्ले द ASCII वैल्यू? कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं? वेरी सिंपल, ये वैल्यू को हम डिस्प्ले करेंगे जो वैल्यू हमारे पास उसने एंटर करी है, बट उसके सामने अभी इसको कन्वर्ट करेंगे हम इंटीजर में. दिस विल बी, जैसे हमने यहाँ पर इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट किया, यहाँ पर कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे. इट विल बी डिस्प्लेइंग एज द ASCII वैल्यू. आर यू गेटिंग? यस और नो? यस सर. ओके, अभी तीसरी कंडीशन क्या हमारी, कब तक एक्सेप्ट करना है? जब तक हम स्टार नहीं डालते. मतलब क्या, एज सुन एज ही एंटर स्टार अ प्रोग्राम शुड गेट टर्मिनेटेड. अ प्रोग्राम शुड गेट टर्मिनेटेड मतलब क्या, ये कैरेक्टर हमने यहां पर डाल दिया, ओके ये कैरेक्टर उसने डाल दिया, ये हमने यहां पर लिया है. एज सुन एज द वैल्यू इज जनरेटेड वी विल बी, यहां पर हम लिखेंगे एक इफ कंडीशन, इफ दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू सिंगल कोट स्टार. ये अगर नहीं होंगी, ये नहीं होंगी तो हमें ये काम करना है. अगर स्टार नहीं होगा तो हम यहां से यहां तक प्रोग्राम को रन आउट करेंगे. आर यू गेटिंग? ओके, ये कैच यहां से यहां तक, ये कैच यहां से यहां तक, ये ट्राई हो गया, ये इफ्स कंडीशन, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज एन else. I will say bye bye. ओके, नाउ ये मैं फिर से बता रहा हूँ, दिस इज क्लोजिंग ऑफ माई ट्राई. तो एक थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे. दिस इज क्लोजिंग ऑफ माई ट्राई. ओके, दिस इज क्लोजिंग ऑफ माई कैच, फर्स्ट वन सेकेंड वन कैच, ये फर्स्ट कैच है, ये सेकेंड कैच है. ओके, देन दिस इज क्लोजिंग ऑफ माई इफ, ये हमारी इफ क्लोजिंग है. ओके, और इफ की क्लोजिंग मतलब क्या, ये हमारा ब्रैकेट कहाँ पर तो गलत हो गया है, यहाँ पर हम वो ब्रैकेट को डाल देंगे. नाउ दिस इज क्लोजिंग ऑफ माई while loop, while, and this is closing of my main, okay, function, and this is closing of my class. Are you clear? Yes or no? तो ये जो कोड Yes, है, sir. yes,
इसको मैं फिर से एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ तो सोर्स में आपको समझ में आएगा कि हमने किस तरीके से किया। ओके, नाउ सी इफ इट इज इमीडिएटली जैसे आप डालेंगे, ये प्रोग्राम कब टर्मिनेट होगा, कब टर्मिनेट होगा, जब तक हम ये डालेंगे नहीं, बाय बाय करेंगे, पर बाय बाय करने के बाद हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। किसको करना है ब्रेक, दे लूप को। सो ब्रेक द लूप एंड इट विल बी ये दो कंडीशन को हैंडल करना है तो हम इसको ब्रैकेट में हम इसको डाल देंगे, बिकॉज टू कंडीशन शुड बी गेट एग्जीक्यूटेड। अगेन आई एम गोइंग फॉर फॉर्मेटिंग ईयर, फॉर्मेटिंग से टेक्स्ट कंटेंट सिस्टमैटिक दिखाई देता है। ओके, नाउ इट्स ओके। ये इफ कंडीशन, इफ इट इज फाउंड दैट, इफ इट इज नॉट फाउंड, नॉट मतलब क्या, अगर ये स्टार नहीं होगा तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता रहेगा। कब तक, जब तक ये प्रोग्राम स्टार नहीं डाल देता। एंड एज सुन एज ही एंटर्स अ स्टार द प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटिंग दिस वन, दैट इज बाय बाय, एंड ये प्रोग्राम विल गेट टर्मिनेटेड। ये कब तक रन होगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता थी। हर बार हम ये डिस्प्ले करेंगे, कस्टमर एंटर बोलने को बोलेंगे, एंटर कैरेक्टर, ही विल बी एंटरिंग अ कैरेक्टर, उसको हम हर बार कैरेक्टर को वैल्यू में स्टोर करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे एक कैरेक्टर क्लास में। क्यों, क्योंकि हमें इस डिजिट नाम का फंक्शन से उसको यूज करना है, नहीं तो ये लॉजिक बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, यू कैन डू इट विद कैरेक्टर ऑल्सो, बट ये इस डिजिट फंक्शन को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ओके, एंड आई जस्ट सेव इट एंड शैल आई गो फॉर रनिंग दिस प्रोग्राम, yes or no? Yes, sir. Okay. सो ओके, द फर्स्ट टाइम देखो यहाँ पर आ चुका है, ये यहाँ पर आ चुका है, एंड इट इज आस्किंग एंटर कैरेक्टर, ये वाला आई एम एंटरिंग, सपोज आई एम एंटरिंग ए। ओके, नाउ इट विल शो ये यहाँ पर आएगा, मतलब क्या, ये वॉवल है, इट शुड थ्रो एन एक्सेप्शन, दैट इज एक्सेप्शन वॉवल एंटर्ड। ओके, एंड आई एम प्रेसिंग एंटर, सी वॉवल एंटर्ड। ये नीचे वाले पार्ट को डाले, एंटर कैरेक्टर कंसोनेंट आस्की वैल्यूज 13, एंटर कैरेक्टर कंसोनेंट आस्की वैल्यूज 10। ये क्या हो रहा है इसको, how this has happened now? Again I am running in the program, okay, and I am putting now z, and now I am expecting only ASCII value. The ASCII value is 122. What about this remaining part? ये कहाँ से आ रहे, क्या लगता है कहाँ से आ रहे होंगे? यस, ऊपर वाला तो बराबर चल रहा है ना, ये वाला तो ठीक चल रहा है ना, तो ये वो नीचे कहाँ से आ रही है, एंटर कैरेक्टर एंड देन अगेन अ ASCII वैल्यू 13 और 12, कहाँ से आ रही है? One second. Okay, can you remove this bug? I can call it as a bug. I will be sharing the code with you. I want to stop the program at this situation only. अभी ये प्रोग्राम को फिर से एक बार मैं रन कर रहा हूँ, and I am putting now star. As soon as I am entering star, and it should get terminated. It is okay. It is showing bye bye. No issue about that. But अगर मैंने इसको यह रन करके, अगर मैंने यहाँ पर उसके अंदर कोई भी कैरेक्टर डाल दिया, सपोज आई हैव एंटर्ड ई, it is showing me correct, it is vowel, no issue. And if I entered any consonant like F, okay, so again it is consonant, so इसने मुझे दिखा दिया इसकी ASCII वैल्यू, no issue about it. अगर मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिया 1, it should show that this is a digit. Then how this is part is coming? क्या गलती हो गई हमारी? यहाँ तक तो ठीक है, क्या लगता है? थर्टीन एंड 10, तीन बार हो रहा हर बार, मतलब क्या?
Okay, are you clear with this logic now? Yes or no? Yes, sir. Okay, ये वाला bug आप निकाल दो, and otherwise I will remove it and I will show you how this has occurred. Okay, now we'll move further for the next program, that is the 34th program. That is you have to check whether the number is even number or odd number or the number is zero or not. ये आप कर सकते क्या? मैं करूँ 2 मिनट में? Yes. So this one I will do, no issue about that. Even odd number का मैं कर देता हूँ. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ये 2 वाले आप कर दो. ये एक ही जो लास्ट वाला बचा है लोअर केस अपर केस का, ये आप खुद कर सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है. सो जस्ट हियर आई एम गोइंग इनटू द सोर्स फोल्डर, राइट क्लिक, न्यू, एंड दिस इज़ वन क्लास, और इसको मैं देता हूँ इवन ऑड एक्सेप्शन. इवन ऑड एंड ज़ीरो नाम देंगे हम इसको. ज़ीरो की कोई ज़रूरत नहीं, बट इट इज़ देयर ऑलरेडी. ज़ीरो एक्सेप्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड में. नाउ सी देयर इज एन जीरो एक्सेप्शन ऑलरेडी हमने लिख के रखा हुआ है, जीरो एक्सेप्शन. तो हमें यहाँ पर जीरो एक्सेप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं, अभी हम सिर्फ इवन ऑड एक्सेप्शन लिखेंगे. सो क्लास, थोड़ा सा पहले हम ये प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट करेंगे 34th वाले को, और इसके टाइटल को हम डालेंगे. ये लेना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आई वॉन्ट टू शो समथिंग. ओके, सो इवन एक्सेप्शन, 1 सेकेंड, वेरी फास्ट में मैं इसको कॉपी कर देता हूँ एंड जस्ट गो फॉर क्लास एक्सटेंड्स एक्सेप्शन. फर्स्ट रूल completed. Second rule, the name of the constructor and with some string msg, and ये message के अंदर we will be calling one function called as a super constructor, and this message will be passed by this one. This is the first class. Okay, and on same parameter I will be writing the one more class, that is odd. Okay, so ODD, मैं ज़्यादा time waste नहीं करूँगा. This ODD, and this is message 1 and message 1. Okay, I think this is clear to everybody. Even exception and odd exception. Okay, जीरो एक्सेप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी देयर इन योर पैकेज. अगर मैंने ये लिखना चालू कर दिया, अगर मैंने ऐसा लिखा, इट विल शो एन एरर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये नाम की एक्सेप्शन है, दैट इज़ ज़ीरो. ऐसा मैंने लिखा तो ये नो प्रॉब्लम, ये रन करते समय एरर दिखा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज ये नाम की ऑलरेडी क्लास, ये पैकेज. देखो ये वाला एरर दिखा रहा है, आपका दिखा सकता है आगे जाके, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन टू योर पैकेज. जीरो एक्सेप्शन हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई. लेट अस सी नाउ, दिस इज इवन ऑड प्रोग्राम. हाँ, इवन ऑड प्रोग्राम मतलब क्या? अगर आपने डाला हुआ नंबर इवन है तो दैट विल बी treated as an even exception will be thrown. So just I will read some positive negative. ये वाला जो है इसमें से कुछ लॉजिक को हम कॉपी पेस्ट कर देते. दैट्स इट, आई डोंट वांट टू स्पेंड योर मोर टाइम. तो पहला हम पैकेज को इंपोर्ट करेंगे इनटू दिस वन. सो सबसे टॉप में आ जाएगा पैकेज, और उसके अंदर हमारा ये लॉजिक. ओके, सॉरी यहाँ से आता, एंड आई एम जस्ट शॉर्ट में. ओके, सो बफर रीडर लिया है, एंटर एनी नंबर. हम यहाँ पर बोलेंगे इवन नंबर और ऑड नंबर. नंबर विल बी रीड फ्रॉम द रीड लाइन. ये हम एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे. देन ये वाला एक्सेप्शन को हम यहाँ पर कंडीशन डालेंगे. इफ द नंबर, कंडीशन बोल सकते, इफ नंबर मॉड 2 is exactly equal to 0, मतलब क्या? we will be throwing an exception called as an even number. if the number mod symbol should be mod 2 is exactly equal to, we will be throwing an exception called as an even. इसको नाम क्या है हमारा? even exception. exception number is even, और हम ये क्लास को हम कैच में डाल देंगे. this is even exception. okay, and second one, if the number mod 2 is not equal to 0, then it will be odd exception, that is number is odd. And if the number is exactly equal to 0,
Okay, if the number is exactly equal to 0, that exception number is 0, and that's it, 0 exception यहाँ पर है. Are you clear with this one? Little bit change we have done, but the code is exactly equal. Yes. Okay, सिर्फ हमारा लॉजिक चेंज हो चुका है, बाकी थ्रो विल बी throwing that corresponding exception, that number is even or odd. So we'll be accepting a number and that number will be shown whether it is even or odd, and corresponding number will be okay. If I enter 20, this is an even number, so number is even, exception been thrown. Okay, if I enter one more number, that is what you call as a 9 number 9, so it will show an number is odd. And if I enter any number that is 0, it will be shown number is, sorry, यहाँ पर हर बार else लिखना पड़ेगा. else if की ज़रूरत नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है. There is no need of else. If number is okay, if I enter 0, ब्रेक तो हमने लिया ही नहीं, there is no need of break. 1 second, ये कंडीशन को हम स्टार्ट में ही चेक करेंगे. Okay, number is 0. And if I go for adding negative numbers, so just like it, still it is negative even number, so it will be even number. If I am go for running it, any number that is negative odd number, that is 111 minus, it will be, and number is odd, because though the sign is negative or positive, it will not hamper your program. So are you clear with this? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. If you go for adding 0, displaying 0, so it will say the number is 0, exception. Clear? Okay, now this you can do it. Write a program to in Java to check whether the enter character is alphabet, digit और a space character. अब इसका मैं क्लू देता हूँ आपको. डिजिट के लिए मैंने दिया है आपको, ये वाला पहले वाले प्रोग्राम में मैंने आपको दिखा दिया है कि इस डिजिट नाम के फंक्शन से वी कैन चेक वेदर दिस कैरेक्टर इज डिजिट और नॉट. Okay, now you can check the on same parameter, you can go for checking the alphabet also. You can go for checking the whether it is the person has entered space or what, space or kya. So there is one function to check the space into your character class, and that is the name of the class is space. Okay, ये आप try करो and get the solution. इस space नाम से आप space को check कर सकते हैं. And one more thing into this program is that if the alphabet, if it is an alphabet, अगर उसने alphabet डाला होगा, then you have to throw that user defined exception and you have to print. यहाँ पर भी आपको print करना है whether it is in upper case or it is in lower case. Whether it is in upper case or lower case, ये आप आपका logic लगाओ. अगर वो बंदे ने character डाल दिया तो it will should show an user defined exception. डिजिट यानी अल्फ़ाबेट्स डिजिट और स्पेस होगा तो इट शुड जनरेट एन एक्सेप्शन, और अल्फ़ाबेट होगा उसमें से अल्फ़ाबेट होगा तो यू हैव टू टेल वेदर इट इज़ अपर केस कैरेक्टर और वेदर इट इज़ लोअर केस अल्फ़ाबेट कैरेक्टर. अल्फ़ाबेट यानी हम सिर्फ अल्फ़ाबेट के लिए बात करेंगे, ध्यान में रखो. ये तीनों आ गए तो आपको उसकी करस्पॉन्डिंग एक्सेप्शन थ्रो करनी है.
अल्फ़ाबेट होगा तो अल्फ़ाबेट एक्सेप्शन, डिजिट होगा तो डिजिट एक्सेप्शन, स्पेस होगा तो स्पेस एक्सेप्शन। ये आपको लिखने पड़ेंगे 3 अलग अलग एक्सेप्शन। ये तीनों यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन है, ध्यान में रखो। मैंने यहाँ पर नाम नहीं दिया, डोंट मेक अ चेंज कि हर बार सर ने नाम देना चाहिए। यू कैन क्रिएट योर ओन एक्सेप्शन, अल्फ़ाबेट एक्सेप्शन, डिजिट एक्सेप्शन, स्पेस एक्सेप्शन। ये कब होगा, जब कोई भी बंदा को जो भी डालेगा, यू शुड थ्रो दैट करस्पॉन्डिंग एक्सेप्शन। बट सेकेंड कंडीशन इज दैट अगर वो अल्फ़ाबेट होगा तो वो कौन सा अल्फ़ाबेट है, अपर केस में है क्या लोअर केस में। यू हैव टू अगेन थ्रो एन एक्सेप्शन, दैट इज द अल्फ़ाबेट इज इन अपर केस, द अल्फ़ाबेट इज इन lower case. Are you clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, no problem. Any doubts, any questions? Now this 1 hour is there with you. 1 घंटे में आप ये सब assignments complete करो. If you find the doubt, ये वीडियो में immediately मैं upload करने वाला हूँ, and you can watch the videos and you can complete your assignment today and tomorrow itself, आज और कल. Okay, and the next solution I will tell you. अगर आज try करो आप ये next वाले solution को, if you are not getting, I will be giving the solution in tomorrow session. No issue about that. Okay. So today's session and tomorrow I will not conduct the lecture. That is that evening practical session. You have to complete anyhow situation.